slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो किसी भी जगह पे नहीं मिलती। तो सर हमें ये बताइएगा कि आप कैसे, क्या जज्बा था आपके अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट तक सर आप जा पहुँचे हैं? जी ये सारी बात होती है बंदे को अपने शौक़ की बात होती है। मुझे बचपन से शौक़ था तो मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन कर ली। तो आस्ता आस्ता फिर मैं जिम में एक्सरसाइज करना शुरू करा। फिर मैंने एक मुकाबला देखा, ये मुकाबला देखा 1985 में 6 में वो ये मिस्टर लाहौर का मुकाबला हुआ था। तो मैं ये देखने गया दोस्तों के साथ। तो फिर मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी मुकाबले में हिस्सा लूँ। कि आप भी एक मरतबा आपने तब से ठान ली थी मैं भी एक ना एक दिन ये लाहौर के मुकाबले में विन होऊंगा सर। जी ऐसा ही है। तो फिर मैंने और जोश के साथ जो ना आवाज़ें शुरू कर दी। फिर मैंने अपने उस्ताद पकड़ा। तो जो उस्ताद मोहम्मद शबीर हैं वो 1984 में पाकिस्तान का पहला जूनियर एशिया हुए। फिर उन्होंने मुझे मेरी सरपरस्ती उन्होंने की, तो मेरी तैयारी शुरू की। फिर मैं लाहौर मिस्टर लाहौर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे उस्ताद ने मुझे मेहनत करवाई। तो मैंने भी दिल से मेहनत की और ये कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी। उसके बाद फिर मैं मिस्टर लाहौर डिवीज़न का टाइटल लिया। उसके बाद मैंने पंजाब जूनियर पंजाब का टाइटल लिया। फिर मैं 1991 में जो है ना कराची में नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं हर साल गोल्ड मेडल होता था। या फिर 93 में मैं सिंगापुर गया था, वहाँ मेरी 4th पोजीशन आई। फर्स्ट था मेरा इंटरनेशनल टूर था। तो उसके बाद फिर मैंने वो मुकाबला जब देखा तो वो एक साल 94 नेशनल चैम्पियन हुआ। फिर मैंने 95 में एशिया गोल्ड मेडल एशियन चैम्पियनशिप
जीती, गोल्ड मेडल हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को तैयार किया जिसका नाम हाजी खालिद अली है, मिस्टर पाकिस्तान, 2 टाइम मिस्टर पाकिस्तान है, कई मरतबा नेशनल चैम्पियन है, साउथ एशिया गोल्ड मेडल है, एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में। फिर उसके बाद छोटे भाई को तैयार किया, एक मेरा बड़ा भाई है हाजी खालिद अली, हम चारों भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया हुआ है माशाअल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की मेहरबानी और हमारे माँ बाप। सबसे पहले आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए, उसके बाद आपने अपने भाइयों को भी तैयार किया। हाँ जी, उसके बाद मैंने अपने भाइयों की सरपरस्ती की। मेरी वालिदा ने मुझे कहा था कि ये भाइयों को भी आप इसी लाइन में लेके आओ, इनको भी ये भी मेहनत करें और ये भी अपना नाम पैदा करें जैसे आपने अपना नाम पैदा किया। और वो कौन सी ऐसी डाइट थी जो आप चारों भाई यूज़ करते थे सर? डाइट में हमें ये वाइट मीट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे मुर्गी, मछली, अंडे, दूध, दलिया, इस तरह की जो ना अच्छी वाली खुराक जो है ना वो खानी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद, तो दोपहर के लंच में, इस तरह करके ना वो एक शेड्यूल के मुताबिक जो है ना हम अपनी डाइट वगैरह यूज़ करते हैं। तो उससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मसल की अप्रूवमेंट जो है ना वो आती है और मसल गेन होता है। जो नई जनरेशन है उसको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो कैसी डाइट यूज़ करें कि आम भी रेगुलर जो यानी कि सिंपल भी बॉडी बिल्डिंग जो वो आसानी से कर सके? हाँ, बस ये अब मैं न्यू जनरेशन को ये मैसेज बहुत ख़ास तौर पे देना चाहता हूँ कि बाहर के जो फास्ट फूड आजकल जो चले हुए हैं ना वो इनसे अवॉइड करें, इनसे बहुत परहेज़ करें और अपने घर का खाना खाएं। जैसे वो दाल, सब्ज़ी, रोटी, जिस तरह का भी घर में खाना पका होगा ना वो आप घर में खाओ, एक्सरसाइज करो, इंशाल्लाह ताला आपको उसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है आप ना ये केमिकल वाली चीज़ों से बचोगे और बहुत सी बीमारियों से बचोगे आप। यानी कि जो ये लड़के जो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह ये यूज़ करते हैं, आजकल इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ऐसी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसी ये न्यू जनरेशन को मैं ये जो न्यू जनरेशन में इनको ये मैसेज करना चाहूँगा, आप अपनी नेचुरल एक्सरसाइज करें, नेचुरल डाइट अपनी करें, नेचुरल डाइट के साथ आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह ताला ये अपने जहन से निकाल दे कि मैं फ़लाँ गोली खाऊंगा तो फिर मेरा मसल बड़ा होगा, मैं फ़लाँ इंजेक्शन लगाऊंगा तो मेरा मसल बड़ा होगा। ये कोई चक्कर नहीं है, ये अपना माइंड है, वो आप जिधर भी उसको एडजस्ट कर लें। आप नेचुरल एक्सरसाइज करें। ये जो हाजी खालिद अली मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं, ये नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान हुए थे। मैं 1993 में नेचुरल जो डाइट और फूड खा के मैं सिंगापुर इंटरनेशनल टूर पे गया था। ये सब बकवास है कि नेचुरल बन नहीं सकता, कर नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, आपका नाम? हाफिज़ा नूरे हीरा। माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं FSC पार्ट 2। पहले मैंने हिफ्ज़ किया था, इसके मेरी दादी की ख्वाहिश थी कि पहले दीन की तालीम ली जाए, फिर उसके बाद दुनियावी की तरफ आए थे। मुझे ये बताओ, अपने पापा को इंटरनेशनल हीरो के आप लेवल पे देखती हो, कैसा महसूस करती हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील होता है। अपने प्राउडली हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हमारे बाबा इंटरनेशनल चैम्पियन हैं, बहुत प्राउड फील होता है। तो आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगी? आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान यही है कि न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड में जाया जाए, अपने बाबा के साथ हेल्प की जाए, आगे अल्लाह ताला बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इस वक्त शान एंड अली जो के टिकटॉकर स्टार है, वो इस वक्त उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली के जिम में इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं कि शान एंड अली, आप माशाल्लाह जुड़वा भाई हैं, सेम एक जैसी बॉडी आपने बनाई हुई है, तो इधर जिम में ट्रेनिंग करने आते हैं, कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं आपको? ये आई गेस इट्स बीइंग 5 years वी आर हियर। उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली के अंडर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल स्किनी थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे, और प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, जो प्रोग्रेस है हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत अच्छे कोच। पहले आप बिल्कुल वो दुबले पतले, वो पतले से थे, तो 5 साल हो गए आप ट्रेनिंग इनके पास करते हैं? हाँ जी, 5 साल हो गए हैं। बहुत अच्छे कोच हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। एटमॉस्फेयर आप देख ही रहे हैं जिम का कितना अच्छा है,
ठीक है, आपको पता है एटमॉस्फेयर काउंट करता है, ऊपर से कोच अगर अच्छा हो, ठीक है, ये माशाल्लाह एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा। तो जी भाई मुझे ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह फॉलोअर्स कितने हैं और कौन सा चैनल है सर आपका? यार हम YouTube पे तो कोई चैनल नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बिज़नेस करते हैं अपना, और वैसे फॉलोअर्स हमारे 1.1 मिलियन है, और आपके लाइक्स जो होते हैं टिकटॉक पे वो मोर देन 20 मिलियन है। बिज़नेस क्या करते हैं आप? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, मैं इंटीरियर का काम करता हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, thank तो you। मुझे ये बताएं कि आप ना आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? कोई अगर आपको कोई ड्रामा या फिल्म में कोई इस तरह को कोई सीन मिलता है, तो चांस मिलता है, क्या करना चाहेंगे आप? हमें बहुत सी ऑफ़र्स हुई हैं, अली ने 1-2 ड्रामों में काम भी किया, बट इनफैक्ट आपको अभी बताया कि हमारा बिज़नेस है, सो लाइफ बहुत बिजी होती है काम में। ये एज ए टाइम पास, एज ए एंटरटेनमेंट हम टिकटॉक यूज़ करते हैं। हमारे टिकटॉक पे भी 1.1 मिलियन है, लाइकी पे भी 1.2 मिलियन है, ठीक है, और एक और स्नैक ऐप चल रही है, उस पर भी तकरीबन 500K फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में ही लाइक हैं। लेकिन ये इंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास। ये जो टिकटॉक आप इंजॉय के लिए बनाते हैं, और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि कोई पॉजिटिव कंटेंट में, तो बंदा कर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हम स्टिक हैं ओनली टू आवर बिजनेस, वी कैन आल्सो डू इट। एक आपकी हॉबी होती है ना, जो हॉबी होती है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू अस, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ कोई बहुत लो स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी तो जो अच्छी ऑफर आपको आ जाए, अच्छा स्क्रिप्ट हो जिसका, जिसमें आपको अच्छा रोल मिले, तो आप दोनों भाई, तो आप शान हैं। अगर थोड़ी देर के लिए शान को इधर कर दिया जाए, अली को उधर, तो तकरीबन कोई बंदा नहीं पहचान सकेगा। कोई भी नहीं पहचान सकता जी, ये दोनों मेरे शहजादे हैं। साजी चलन सारी मेहरबानी। चलो चलो। तो जी सर बताइएगा इनके बारे में और कोई खबर वगैरह हो? ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, वे शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है बॉडी बिल्डिंग का। तो माशाल्लाह मुझे खुशी होती है, ये रेगुलर आते हैं। इतनी मसरूफियात है इनकी, कारोबार भी करना, फिर टिकटॉकिंग भी करनी, तो इस मसरूफियात में ये आते हैं, अपना आधा पौना घंटा जितना भी टाइम करें, तो ये शौक़ की वजह से आते हैं। खान भाई मुझे ऐसा कोई वाक़या बताएं कि कभी फंक्शन पे आप गए हों, कोई ऐसी जगह पे गए हों। वाक़या छोड़ें, मैं आप लोगों को भी सबको एक जिम की स्टोरी सुनाता हूँ। अली मेरे से पहले सीनियर है जिम में, वो पहले आया था कोच के पास, ठीक है, उसने आना स्टार्ट कर दिया, तो अली को देख के मैं बहुत ज़्यादा ना, मेरा मूड बन गया कि मैं भी जिम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं भी आने लग गया। उस्ताद जी को 6 महीने तक पता ही नहीं लगा कि ये 2 भाई हैं, दोनों आते हैं। उस्ताद जी यही सोचते रहे कि यार इसे बड़ा शौक़ है, ये रेगुलर 2 टाइम आ जाता है, क्योंकि मैं सुबह आ जाता था, अली शाम को आ जाता था। यानी कि उस्ताद जी ये समझे हैं कि शान ही वो आ रहा है। अली था कि अली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिम में, ठीक है, तो ये सुबह भी आ रहा है। अली भाई 2 टाइम आ रहे हैं, उस्ताद जी को वो बाद में जाके पता लगा। ट्रेनिंग में, बॉडी बिल्डिंग में 2 टाइम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जब आप प्रोफेशनली कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं तो करते हैं, लेकिन वो ये था कि शाम को ये आता था, सुबह मैं करता था ट्रेनिंग, लेकिन उस्ताद जज नहीं कर सका शुरू में। लेकिन फिर जब प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर एक दफ़ा ये मेरे ऑफिस भी आए, तो मिले, इन्होंने कहा मेरे से फिल्में चलाई जा रहे हो क्यों ये। अच्छा, फिर उन्होंने कहा आप मुझे धोखा दे रहे हैं भाई। नहीं, फिर मैं दफ्तर गया ना, इनके दफ्तर जाके बैठा, ये बड़ी इन्होंने तो बैठे, फिर मैं गया। अच्छा, एक फ़नी हो गया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। आप इधर आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कितना अर्सा हो गया आपको? सर मैं यहाँ पे तकरीबन कुछ 7-7.5 साल हो गए हैं इस जिम में ही, शेप इन में ही। वैसे तो काफ़ी जिम और भी विज़िट किए हैं आपके लाहौर में, पर वन ऑफ द बेस्ट जिम हर चीज़ के लिहाज से। अगर आप मशीनरी देखें, मशीनरी के अलावा यहाँ की कोचिंग देखें, सारे जितने भी लड़के यहाँ पे आ रहे हैं सारे बड़े फ्रेंडली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 साल मुझे यहाँ पे हो गए आते हुए। तो जी सर मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आप इधर जिम कर रहे हैं? जिम तो मुझे यहाँ पर करते हुए तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं।
तो मेरा जो कहने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जो उस्ताद मुज़फ़्फ़र जैसे जो बंदे हैं ना, ये आजकल के दौर में हम इनको फ़रिश्ते कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बंदे जो है ना, आप यकीन करें कि इतने ये जो बनाना है और यहाँ पर आके बंदे गेम करते हैं, ये कितने किस्म की चीज़ों से बच जाते हैं, कुछ सिगरेट से बच जाते हैं और कितने किस्म के नशों से बच जाते हैं। तो मैं तो जो मेरे हिसाब से तो ये है कि मेरे हिसाब से मैं इन जैसे उस्तादों को फ़रिश्ता कहता हूँ कि ये लोग हमारे लिए फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको समझ लें कि आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी कबाहतों से और बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। यानी कि आप इनके इतने क्लोज हैं कि आपको ये भाई अपने मानते हैं, यानी कि भाइयों जैसे ही आप। सर मेरे उस्ताद हैं और इनकी बड़ापन है कि मुझे भाई कहते हैं। सर आप भी इनके स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सारे जो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सारे उस्ताद मुज़फ़्फ़र जो हैं इनके ही शागिर्द हैं, और ये मैं पर्सनली गाइड भी करते हैं। और आप अच्छे कोच हैं? नहीं, अच्छे कोच तो बहुत आप छोटा लफ्ज़ बोल रहे हैं, कि उस्ताद हैं, जो उस्ताद हैं, ठीक है ना, उर्दू के लफ्ज़ उस्ताद की उस्ताद हैं हमारे सबके। तो जी भाई आप ही इनके स्टूडेंट हैं? जी जी बिल्कुल जी, ये हमारे उस्ताद मुज़फ़्फ़र साहब हैं, लोग जो कि लेजेंड, पाकिस्तान के लेजेंड में से आते हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि माशाल्लाह हमारे उस्ताद नेशनल चैम्पियन भी हैं, साउथ एशियन चैम्पियन भी हैं। इनके माशाल्लाह 4 भाई हैं, वो भी नेशनल चैम्पियन और साउथ एशिया मिस्टर पाकिस्तान, यानी आप एक पूरी लड़ी है। तो भाई मैं कहता हूँ कि आप इस जिम में आएँ, आप एक बार विज़िट करने आएँ, आपको इधर साफ़ सुथरा माहौल, मशीन, वेट, हर चीज़ अप टू डेट मिलेगा और इक्वल मिलेगा। वरना जिमों में होता है वेट में फ़र्क होता है, 10 की प्लेट उठा रहे हैं, 7 की प्लेट होती है। इधर टोटल बैलेंस वेट है, बैलेंस रॉड है, आपको हर इधर फैसिलिटी है, AC इधर है, इवन दो डिस्पेंसर, हर साफ़ सुथरा माहौल। हमारे उस्ताद जी ने कभी भी यही फोकस किया हर बंदे को, कहा जी जिम में साफ़ सुथरा ही रखो, गंदगी ना होए। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ जी, तो मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा अपना शौक़ है। तो जैसे हम जो पुराने वेट बेंच वगैरह से निकल के आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जो न्यू जनरेशन को एक अच्छी फैसिलिटी मैं दूँ। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपको उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली एशियन गोल्ड मेडलिस्ट के जिम का विज़िट करवाया है। खुदारा अपने बच्चों को अच्छी डाइट खिलाएं और इनको एक्सरसाइज की तरफ लगाएं। मुझे अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट और कैमरामैन आबशार बाबर के साथ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं।